Gems and Jewelers. One visit can change your life. Only one visit can change your life. اللہ کے اثرات ہیں. سورج کی تپش سے انسان کو صحت ملتی ہے, چاند کی ٹھنڈک سے انسان کو سکون ملتا ہے, پانی کے پینے سے انسان کی پیاس بجھتی ہے. اسی طریقے سے ایک صحیح گوہر کے استعمال سے انسان کی زندگی میں جو بھی پریشانی ہے اس پریشانی کو دور کیا جا سکتا ہے, اپنی منزل کو انسان پہنچ سکتا ہے, خوشحال رہ سکتا ہے. اگر آپ اپنی زندگی میں پریشان ہیں, پریشانی پیسوں کی ہو, پریشانی صحت کی ہو, آپ شادی بیاہ کے بارے میں پریشان ہو, بار بار تلاش کرنے کے بعد بھی نوکری نہیں مل رہی ہو, کاروبار میں ترقی چاہتے ہوں, یا پھر بیرونی ملک جانا چاہتے ہوں, یا پھر کوئی بھی مشکلات ہوں, اس کے لیے ہم سے رابطہ قائم کریں. راسک جیمز اینڈ جویلرز, راسک جیمز اینڈ جویلرز. Only one visit can change your life. ناظرین السلام علیکم, میں آپ کا دوست احمد رائل پاشا آپ تمام ناظرین کا پروگرام جواہرات کا کرشمہ میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں. یہ ایک ایسا پروگرام ہے ناظرین جس میں آپ کسی بھی طرح کی پریشانی کے متعلق سوال کر سکتے ہیں اور اس کے جواب حاصل کر سکتے ہیں, خاص کر کے وہ لوگ جن کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کس طرح کا بزنس شروع کریں, یا کسی کی جاب نہیں لگ رہی ہو, یا شادی نہیں لگ رہی ہو, یا کسی کے پاس مکان نہیں ہے, کسی طرح کی بیماری ہو, غصہ زیادہ آتا ہو, بی پی لو ہو یا بی پی ہائی ہو, کسی بھی طرح کی پریشانی ہو, تو آپ جو ہے اس پروگرام میں کال کر کے اپنے سوالوں کے جوابات حاصل کر سکتے ہیں. یہ ناظرین, یہ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ جو عظیم ہستی ہماری اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے وہ ایک جانی مانی دنیا کی عظیم ہستی ہیں. ان کا تعارف کرانا ضروری تو نہیں سمجھتا ہوں, لیکن جو لوگ نئے ہیں اس چینل سے ابھی بھی جڑے ان کو میں بتاتا چلوں کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ایم رضا صاحب. کنگ آف جیمز کے نام سے جانے جاتے ہیں, ایمیننٹ جیمولوجسٹ ہیں, کئی ایک انعامات سے نوازے جا چکے ہیں اور تقریباً 50,000 لوگوں کی کاؤنسلنگ کر چکے ہیں. تو ناظرین آئیے آپ اور ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے پروگرام میں. شکریہ جناب, شکریہ. پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے سب سے پہلے میں ناظرین سے درخواست کرنا چاہوں گا کہ جب بھی آپ ہمیں کال کریں اپنی ٹی وی کی آواز بالکل بند کر دیں اور اپنا نام, صحیح نام, اپنی تاریخ پیدائش اور وقت کے ساتھ ہمیں ساری انفارمیشن دیں. اس کے بعد اپنا جواب حاصل کر سکتے ہیں. جو حیدرآباد سے یا اس کے آس پاس کے اضلاع سے تعلق رکھتے ہیں وہ ڈاکٹر ایم رضا صاحب سے بات کر سکتے ہیں. جو نمبر اس کال ہو رہے ہیں اس پر آپ اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں اور اس کے بعد اپنی پریشانیوں کا حل جان سکتے ہیں. جو بنگلور یا اس کے آس پاس کے اضلاع سے تعلق رکھتے ہیں وہ ڈاکٹر روشن صاحب سے بات کر کے اپنی پریشانیوں کا حل جان سکتے ہیں. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور شامل کرتے ہیں آج کے پہلے کالر کو. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں کریم نگر سے فاطمہ بول رہی ہوں. جی فاطمہ صاحبہ آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام میں. آپ کو کس کے بارے میں بات کرنا ہے؟ جی میرے بھائی کے بارے میں بات کرنا ہے. اس سے پہلے غالباً آپ نے کال کیا بھی تھا. ہاں کال کیا تھا. پروگرام آپ کو کیسا لگتا؟ الحمدللہ بہت فائدہ ہوا. ایکچولی کیا ہے نا کہ اکتوبر سے میری صحت کافی خراب تھی. جی. ڈاکٹرز کے رپورٹس کے مطابق ٹیومر بتا رہے تھے. جی. یہاں تک کہ حیدرآباد کی ایک میں نام نہیں لینا چاہوں گی بٹ بہت فیمس ہاسپٹل ہے, ان لوگوں نے تو بولا کہ 7 دن میں آپ کو سرجری کرنا پڑے گا. جی جی. پھر میں اس سے چند دن پہلے میں ڈاکٹر صاحب سے بات کری تھی روبی اور موتی پہننے کے لیے. ڈاکٹر ایم رضا صاحب سے نا؟ جی ہاں ڈاکٹر صاحب سے. جی. تب میں نے روبی اور جب مجھے وہیں پر ویٹنگ ہال میں بیٹھ کے میں نے کافی سوچنے کے بعد میں نے روبی اور موتی پہن کے ایک 10 دن 15 دن کے بعد میں پھر واپس چیک اپ کے لیے جب گئی جی تو آپ یقین نہیں مانیں گے, ڈاکٹر صاحب نے جب رپورٹ دیکھی تو انہوں نے کہا کہ آپ کا کیس تو سرجری کا ہے ہی نہیں. جی جی. یہ تو پیٹیوٹری گلینڈ کا سائز انکریز ہوا ہے, بس میڈیسن سے کم ہو جائے گا. جبکہ 7 دن میں میری سرجری ہونے والی تھی. جی تو اتنا فائدہ ہوا ہے. جی بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس بیماری سے نجات دلا دی. اور ہمارے جو ناظرین یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی ایک مثال ہے کہ آپ نے جس طرح سے جواہرات کا کرشمہ میں کال کر کے ڈاکٹر ایم رضا صاحب سے ملاقات کر کے اور ان کے بتائے ہوئے مشورے پر عمل کیا تو آپ کی بیماری ختم ہو گئی. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ خود موجود ہیں, آپ ان سے سلام دعا کر سکتی ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم فاطمہ صاحبہ. وعلیکم السلام. الحمدللہ جتنی بھی تعریفیں کم کرو خدا کی کم ہیں. دیکھیے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے ہیں, اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی چیزیں ہیں. یہاں پر ناظرین کے لیے ایک چھوٹا سا میں ایک میسیج دے دوں.
तमाम दुनिया को जो खल्क किया है वो खालिक कायनात अल्लाह ताला की ज़ात है। ये सितारे, ये जहान फ़ानी, ये दुनियाएं जितने भी हमें नहीं मालूम इसके अलावा कितनी दुनिया हैं, सभी कुछ खल्क किया है अल्लाह ताला ने खल्क किया है। सभी का इल्म उसी के पास है, लेकिन अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बना दिया है, एक ज़रिया बनाया है, एक नेमतें हम इंसानों के लिए बनाई हैं। इंसान को अक्ल के साथ हिकमत अता की है कि इंसान उससे फ़ायदा उठा सके। और दूसरी बात बता दूं नाज़रीन के लिए, सबसे पहले आपको मुकम्मल भरोसा होना है अल्लाह ताला की ज़ात पर। उसके बाद जो है जो ज़रिए होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, ऑपरेशन करवाते हैं, तो सबसे पहले जो हमको भरोसा होता है खालिक के ऊपर भरोसा होता है, नमाज पढ़ते हैं, शुक्र अदा करते हैं, दुआ मांगते हैं, बाद में डॉक्टर के पास जाते हैं। इसी तरीके से जैसे कि आपने बताया कि ट्यूमर जैसी बीमारी आपको ऑपरेशन तक की नौबत पहुंच गई थी, आप हमारे पास, मेरे को याद है कि आप बताए थे परेशान भी थी आप, तो हम बनाने के बाद, बना कर देने के बाद आपको अच्छा भी हो गया। चलिए हम अल्लाह ताला दुआ करते हैं कि इसी तरीके से जितने भी जो परेशान है सभी की परेशानी दूर हो जाए, सेहत से रहें, हयात से रहें, खुशहाल रहें। तो आप बताइए क्या जानना है, किसके बारे में जानना है आपको? तो लाइन कट गया शायद फातिमा का, तो बहुत खुशी होती। देखिए मेरे को याद है, यकीन है, एक ये जो औरत है, ये खातून जो है, हमारे ऑफिस में जब यहाँ पे बात हुई थी, जब फतह मांगे तो फोन में बात हुई थी, तो खातून ने बताया था कि फातिमा साहिबा शायद लाइन पे। फातिमा साहिबा जी, हेलो जी आवाज आ रही है आप तक? हाँ जी आ रही। जी आप क्या पूछना चाह रही थी? अपने भाई के बारे में सवाल करना चाह रही थी ना? जी मोहम्मद इलियासुल हसन नाम है। मोहम्मद 29 मोहम्मद इलियासुल हसन। इलियासुल हसन जी, उनकी तारीख पैदाइश 29 अगस्त 91 है। वक्त बताएंगी? वक्त का अंदाजा नहीं है, बट उसको शादी में प्रॉब्लम है, जॉब की प्रॉब्लम है, सऊदी जाना चाह रहा पर वीजा नहीं लग रहा। जी डॉक्टर साहब आपको हल बताएंगे। डॉक्टर फातिमा साहिबा, जी सर। अगस्त 29 91 बताया आपने? हाँ जी। देखिए जैसे कि हमने डेट ऑफ बर्थ दिया है, सुबह का टाइम हमने लिया है, तो उसके साथ देखा जाए तो विरगो का जायचा मतलब असेंडेंट बनता है, उसमें मार्स बैठा हुआ है, थोड़ा परेशान है, सेकेंड हाउस डैमेज है, हर काम में रुकावट आ रही है। जैसे कि आपने कहा कि सऊदी जाना चाहता है लेकिन रास्ते नहीं बन पा रहे हैं, थोड़ा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या बता दूँ आपको, असेंडेंट का जो लॉर्ड होता है थोड़ा वीक है, जिसको मेर्क्यूरी कहा जाता है, जिसकी वजह से आपके भाई की ज़िंदगी थोड़ा परेशानी आ रही हैं, लाइफ में स्टेबल नहीं है, डेवलपमेंट रुक चुका है। दूसरी बात बताता हूँ, वीनस भी खराब हो चुका है। वीनस जब लड़कों के जायचे में खराब हो जाता है, शादी में मुश्किलात लेकर आता है, शादी में मुश्किलात खड़ी कर देता है, डिले करता है, परेशान करता है, रिश्ते आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं, ये मुश्किलात होती हैं। इसको रोकने के लिए, इससे बाहर निकलने के लिए आपके भाई को चाहिए एक एमराल्ड, जमरूद कहा जाता है, पन्ना भी कहते हैं, मिनिमम 3 कैरेट का रहना है, साथ में सफ़ेद पुखराज, वाइट सफ़ेद कहते हैं, दोनों बनाकर नॉट लेस देन 3 कैरेट, दोनों 3-3 कैरेट के रहना है, दोनों बनाकर आपके भाई को पहना इंशाल्लाह ताला। जैसे कि आपने कहा सऊदी को इंशाल्लाह जा सकता है, बाहर की दुनिया में इसका रिस्क रखा हुआ है, खुशहाल रहेंगे। आपको तो रास्ता मालूम है, ऑलरेडी आप हमारी कस्टमर हैं, आप हमारे से स्टोन्स मंगा कर पहनी हैं और रिजल्ट भी अच्छा निकला है, और हम आपके लिए दुआ कर दें जिस तरीके से आप खुश हैं। और राहिल साहब यहाँ पर एक छोटी बात बता देता हूँ, मैं हज़ारों लोग सर्विस लेते हैं, कोई बहुत से कम लोग होते हैं जो रिस्पांस देते हैं फ़ोन करके जो बताना, जैसे कि शुक्रिया के कॉल होते हैं या मुबारकबादी की जो कॉल होते हैं, बहुत से लोग करते हैं। उनमें से एक फातिमा है, इतना दिल खुश हो गया है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद से अल्लाह ने किया, लेकिन हमने सिर्फ एक ज़रिया बताया था, रास्ता बताया था। करने वाले ज़ात सिर्फ अल्लाह ताला की, हतमी ज़ात उसी की ज़ात है, ये जहान सभी उसी ने पैदा किए हैं, इस दुनिया का सारी इल्म उसी के हाथ में है। लेकिन उसने इंसान को पैदा करने के बाद अक्ल से नवाजा। यहाँ पर छोटी सी मिसाल, गर्मी का मौसम है, जब हम कार में आ रहे थे, एयर कंडीशन कार में आ रहे थे, लेकिन इतनी गर्मी है, अंदर थोड़ी गर्मी अंदर आ रही है, 21 के हमने एसी रखा हुआ है, आ रहे हैं तो गर्मी का एहसास हो रहा है। तो हम डिस्कस कर रहे थे, तो मेरा पी हमारे दरमियान जो रहते हैं, बताया उनको, देखिए अल्लाह ताला ने इतना नेचर में परेशानी रखी है, लेकिन इंसान अक्ल देकर एसी तैयार किया। इंसान ने तैयार किया ना एसी को, किसने तैयार किया? एयर कंडीशन को। इतनी गर्मी है, गर्मी का मौसम है, इंडिया भर में सुबह पेपर में देख रहा था 49, 50, 51, 48, 47, सभी जगह 40 के ऊपर ही दिखा रहा टेम्परेचर। हमारे यहाँ तो साउथ में तो 40 मतलब बहुत मुश्किल होता है, बहुत से लोग मर भी जा रहे हैं, पेपर में न्यूज भी आया है। तो इंसान की अक्ल क्या काम की है, इस गर्मी से बचने के लिए इंसान ने कूलर को तैयार किया, पंखे को तैयार किया, फैन को तैयार किया, एयर कंडीशन को तैयार किया। मतलब क्या? उस गर्मी से बचने के लिए नेचर को कोई बदल नहीं सकता। अगर इंसान चाहे तो नेचर बदल सकता, नहीं बदल सकता, लेकिन उससे बचने के लिए इंसान ने क्या किया? एक एयर कंडीशन को ईजाद किया, पंखे को ईजाद किया,
फैन को ईजाद किया, उससे अपने आप को बचा रहा है। बारिश की मिसाल ले लें, जब बारिश होती है इंसान बारिश को रोक नहीं सकता, बारिश से बचने के लिए मतलब छाते का इस्तेमाल करता है, अम्ब्रेला का इस्तेमाल करता है। इसी तरीके से जब इंसान की जिंदगी में परेशानियां हो जाती हैं, मुश्किलात में इंसान जब फंस जाता है, अपनी मंजिल को भूल जाता है, जैसे कि अभी फातिमा ने कहा कि ट्यूमर तक का प्रॉब्लम था तो वो भी निकल गया। तो इंशाअल्लाह ताला देखिए अल्लाह ताला ने कोई चीज बेमानी बेमकसद पैदा नहीं किया है, मगर इंसान को चाहिए कि तजुर्बा करे, ढूंढे और हिकमत से उसको काम ले। तो इसी तरीके से इंशाअल्लाह ताला जो हजरात परेशान हैं, जो भी मुश्किल में हैं, चाहे आपकी सेहत की प्रॉब्लम हो, जिस्मानी प्रॉब्लम हो, चाहे आपकी मेंटली प्रॉब्लम हो, चाहे आपकी फिजिकली प्रॉब्लम हो, जो भी हो इंशाल्लाह उससे बाहर निकलने के लिए जवाहर का करिश्मा अपना ही जिंदगी में खुशहाल रहेंगे इंशाल्लाह ताला। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं आसिफ बोल रहा हूँ कोलकाता से। आसिफ साहब कोलकाता से। जी आपको अपने बारे में सवाल करना है? जी नहीं, मेरी माँ के बारे में सवाल करना है। जी वालदा साहिबा का नाम बताइए। माँ का नाम है नासरीन नेहार बीबी। नसरीन नेहार बीबी। नसरीन नेहार बीबी। उनकी तारीख पैदाइश बताएंगे? 21 जनवरी। जी 21 जनवरी 1973। 1973। वक्त कुछ मालूम है आपको? जी नहीं, वक्त मालूम नहीं। अच्छा ठीक है। डॉक्टर एम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। आसिफ वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं मेरे भाई? थोड़ा परेशान है? जी सर, मेरी माँ थोड़ा परेशान है, उनका हेल्थ का प्रॉब्लम चल रहा है, शरीर में हर जगह दर्द रहता है। इंशाल्लाह आप टेंशन मत लीजिएगा, हर प्रॉब्लम सॉल्व है, वो सॉल्व हो जाएगा, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। जैसे कि आपने जो डेट ऑफ बर्थ दिया, आपकी माँ का थोड़ा हेल्थ का इश्यूज दिखा रहा है, जो आपने डेट ऑफ बर्थ दिया उसके हिसाब से हमने देख लिया, जनवरी 21, 1973 सुबह का वक्त लगाया। अगर देखा जाए तो सन पूरा ख़राब है, जिसकी वजह से थोड़ा हेल्थ का इश्यूज आ रहा है, पूरा बॉडी पेन्स रहेंगे, थोड़ा दिल का भी थोड़ा परेशानी आएगी, थोड़ा मुश्किलात आएंगे, साथ में मूड भी ख़राब हो चुका है, जिसकी वजह से सुकून चला गया है, खुशी खो चुके हैं, तो मूड स्विंग से थोड़ा परेशान है, डिप्रेशन में है। इंशाल्लाह इससे बाहर निकलने के लिए सन को स्ट्रॉन्ग करना है, मून को स्ट्रॉन्ग करना है, जिसके लिए आपको करना है एक रूबी याकूत कहा जाता है, साथ में एक मोती केशी पर्ल कहा जाता है, दोनों बनाकर आपकी मम्मी को पहनाएगा। इंशाल्लाह ताला सेहत ही मिलेगी, खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो, टीवी की आवाज़ बंद कीजिए। कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो हेलो, टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए साहब पहले आप। हेलो जी अपना नाम बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं? माज़रत चाहूँगा, मैं आपका सवाल नहीं ले सकता हूँ। हेलो। हाँ सर, मैं मुजफ्फर अहमद अर्ज कर रहा हूँ। टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, नाम बताइए अपना। टीवी की आवाज़ बंद है सर। हाँ जी, नाम बताइए। मेरा नाम है मुजफ्फर अहमद, श्रीनगर कश्मीर से मैं अर्ज कर रहा हूँ। जी आपको अपने बारे में बात करना है? जी जी। हाँ, तारीख पैदाइश बताइए अपनी। मेरा है 7/11/1979। 7/11। यस सर। 1979। वक्त बता दीजिए। वक्त कंफर्म नहीं है सर। अच्छा ठीक है। डॉक्टर एम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे सवाल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम मुजफ्फर अहमद साहब। वालेकुम अस्सलाम सर। मैं बात यह है कि मैं मुजफ्फर अहमद अर्ज कर रहा हूँ, मेरा किसी काम में कोई ठीक से नहीं हो रहा है। कोई काम में दिल नहीं लग रहा है आपका? के सिलसिले में बताइए। बस ये अर्ज ये है कि मेरा ये बिजनेस मतलब हर एक काम में ये कुछ नहीं हो रहा है, सारा खराब है मेरा। हर काम में रुकावट आ रही है, परेशान है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम है। समझ गया आप, आराम से आप फोन रख दीजिएगा, टीवी में सुनिएगा, हम जो बता रहे हैं उसको फॉलो कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आपकी परेशानी दूर हो जाएगी, हर काम आपको बनेगा, जिंदगी में खुशहाल रहोगे। अगर हम आपका हिसाब लगाएं तो जुपिटर खराब है, जिसकी वजह से आपको तरक्की रुक चुकी है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आज तक आपने जितने भी व्यापार किए हैं, जितने भी जो कारोबार किए हैं, सभी में आपको नाकामी मिली है। साथ में आपका सन खराब है, जिसकी वजह से आप हिम्मत हार चुके हैं, लूजिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं। अभी तक लाइफ में ये ठहराव नहीं आया है, स्टेबिलिटी नहीं है, तरक्की रुकी हुई है। इससे बाहर निकलने के लिए, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपको करना है एक येलो सफ़ेर पुखराज कहा जाता है, साथ में रूबी
मिनिमम 3-3 कैरेट का रहना है, दोनों बनाकर गले में लॉकेट पहने, इंशाल्लाह ताला जिंदगी में खुशहाल रहोगे, कारोबार में तरक्की मिलेगी, सेहत अच्छी रहेगी, हिम्मत भी बढ़ जाएगी, खुशहाल रहोगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, आप तक हमारी आवाज़ जा रही है? गालिबन कॉल ड्रॉप हो गई। डॉक्टर साहब एक सवाल मैं करना चाहूँगा अपने नाज़रीन की तरफ से। जैसे अभी आपने हमारे कॉलर्स को बताया कि जैसे उनको वक्त नहीं मालूम है, सुबह का वक्त आप मान के चले, अगर किसी को वक्त नहीं मालूम है, उसने तारीख़ पैदाइश सही बताई है, सुबह 10 बजे उसकी पैदाइश हुई है, 11 बजे का अगर हम उसके हिसाब से बताएंगे तो कैसा रिजल्ट आएगा? जैसे कि जो नाम बताते हैं ना, नाम के हिसाब से हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। एक्चुअली क्या है, एक्यूरेट अगर डेट ऑफ बर्थ रहा, अगर टाइम ऑफ बर्थ रहा, प्लेस ऑफ बर्थ रहा, तो सवाल पूछने की जरूरत नहीं होती कि आपने कॉल क्यों किया है। जी जी। अभी नसरीन के लिए एक लड़का कॉल किया था, देखा तो वो खुद परेशान है, घर में सारी परेशानियां हैं। जब नाजरीन अगर अपना डेट ऑफ बर्थ एक्यूरेट सही से, टाइम ऑफ बर्थ अगर सही से दे देंगे तो उनको पूछने की जरूरत नहीं है कि क्या सवाल है। जब उनका ये टाइमिंग जब सही नहीं रहता या डेट ऑफ बर्थ सही नहीं रहता, उस समय पूछना पड़ता है कि क्या जानना है, किस लिए जानना है, मतलब प्रॉब्लम के ऊपर भी जवाहरात दिया जा सकता है। तो ये हिसाब से रहता है, डेट ऑफ बर्थ भी कैलकुलेट कर लेते हैं और नाम भी देख लेते हैं, क्योंकि हम तो इसमें एडवांस है ना, तो थोड़ा बहुत फास्ट रहता है, क्योंकि हमको ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का तजुर्बा कम से कम 10 साल से है ना, तो बहुत हम स्पीड में कैलकुलेशन कर लेते हैं, वो हिसाब से रहता है। तो क्योंकि हमारा तो उर्दू में तो 2 साल से चल रहा है, लेकिन तेलुगु में तो कम से कम 10 साल से करते आ रहे हैं, तो तजुर्बा हो चुका है, तो हम बहुत जल्दी उसका हिसाब लगा लेते हैं, 100% एक्यूरेट रिजल्ट भी रहते हैं। उस हिसाब से क्या करते हैं, जब जिसका टाइमिंग नहीं रहता, नाम का भी देख लेते हैं, नाम के हिसाब से डेट ऑफ बर्थ को भी हम ज्वाइन कर लेते हैं, उस हिसाब से हम उनको स्टोन्स बताते हैं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। नाज़रीन ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है आपके अपने ख़ास प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में। दोस्तों जैसा कि आपने देखा, हमारी एक कॉलर थी फातिमा साहिबा, उनको डॉक्टर ने कैंसर बता दिया था, लेकिन हमारे डॉक्टर एम रज़ा साहब ने अपने मशवरों से उनको नवाजा और उनको जो जवाहरात के बारे में बताया, उन्होंने फातिमा साहिबा ने अमल किया और उनकी बीमारी दूर होगी। तो ये बात सही है कि अल्लाह ताला किसी किसी को शफा देता है, उसमें से एक हैं डॉक्टर एम रज़ा साहब, किंग ऑफ जेम्स कहलाते हैं, बहुत ज़्यादा तजर्बेकार हैं और अपने मशवरों से कई लोगों की ज़िंदगी में खुशहाली ला चुके हैं। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और शामिल करते हैं एक और कॉलर को। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मेरा नाम मोहम्मद ख्वाजा रुकनुद्दीन है, मैं कर्नाटक से बात कर रहा हूँ सर। मोहम्मद ख्वाजा रुकनुद्दीन, आपको अपने बारे में बात करना है? जी हाँ, मेरे बारे में करना है सर। जी, आपकी डेट ऑफ बर्थ बताइए। 7/6/1989। 7/6/1989। वक्त बताएंगे? वक्त 7:30 बजे, शाम के 7:30 बजे। चारशंबे का दिन था जी, और चांद की 2 तारीख थी जी, ठीक है, बंदे नवाज की 2 तारीख थी। जी जी, आपने सही जगह कॉल किया। डॉक्टर एम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद, मैं आपकी डायरेक्ट बात करवा देता हूँ। जी डॉक्टर। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद ख्वाजा रुकनुद्दीन साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हो मेरे भाई? अल्हम्दुलिल्लाह सर, 7 हफ्तों से ट्राई कर रहा हूँ सर, आज जाके लगा है। हम लोग पूरे दोस्त लोग मिलके एक साथ कॉल लगा रहे थे आपका। चलो आज कॉल मिल गया आपको। इंशाल्लाह कॉल मिलना उसका मतलब ये है कि आपकी जिंदगी की परेशानी दूर होना इंशाल्लाह ताला। देखिए आपने जो डेटा बर्थ एक्यूरेट दे दिया है, तो सवाल पूछने की जरूरत है, हम बता देंगे इंशाल्लाह ताला। आराम से सुनिएगा और फॉलो कीजिएगा। जैसे कि आपने डेटा बर्थ दिया। 2009 से खाली हूँ सर भाई, 2009 से बेकार हूँ मेरे भाई। आपने डेटा बर्थ दे दिया ना, एक्यूरेट देने के बाद जरूरत नहीं होती कि सवाल पूछने की, हम खुद बता देंगे कि क्या प्रॉब्लम है आपका इंशाल्लाह। ओके, जरूरत नहीं होती पूछने की, जरूरत वहां पर होती है जहां पर डिटेल सही ना हो। अगर हम रिपोर्ट दे दिया है कि उसके अंदर क्या है, हम खुद बताएंगे इंशाल्लाह ताला। देखिए जैसे कि आपने डेटा बर्थ दिया, उसके हिसाब से देखा जाए तो आपका जो असेंडेंट है सजिटेरियस, सैटर्न बैठा हुआ है, वो भी गर्दिश में बैठा हुआ है। बचपन से गरीबी देखी, परेशानी देखी, मुसीबत देखी, जिंदगी में आज तक सेटलमेंट नहीं मिला, हर काम में रुकावट आती है। 2009 से पहले भी जो जॉब किया वो भी आपके लायक जॉब नहीं था, सेटिस्फैक्टरी जॉब नहीं था, थोड़ा परेशानी से जॉब किया आपने, मजबूरी थी। आपको जिम्मेदारी ज्यादा है, जिम्मेदारी उठाना, लेकिन नहीं उठा पा रहे हैं आप, क्योंकि आपका सन भी खराब है, जुपिटर भी खराब है। जब सन खराब हो जाता है, लाइफ में स्टेबिलिटी चला जाता है, डेवलपमेंट चला जाता है, इंप्रूवमेंट चला जाता है, बेकारी में दिन गुजर रहे हैं। कल अच्छा होगा, कल अच्छा होगा, कल अच्छा होगा, आप इंतजारी में हैं। साथ में आपका जुपिटर खराब हो चुका है, जिसकी वजह से आपको लाइफ में तरक्की नहीं मिल रही है, आप अपनी मंजिल
खो चुके हैं, मंजिल भूल चुके हैं। अपनी मंजिल को पाने के लिए, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले आपको सन को स्ट्रांग करना है, साथ में जुपिटर को स्ट्रांग करना है। दोनों को स्ट्रांग करने के लिए आपको एक रूबी पहनना है, याकूत कहा जाता है, मिनिमम 3 कैरेट का रहना है। साथ में एक येलो सफेर पुखराज कहते हैं, दोनों बनाकर पहनना है। ज्यादा जानकारी के लिए बेंगलोर में हमारा शोरूम है, जहां पर हमारे बड़े भाई डॉक्टर रोशन साहब रहते हैं, उनसे आप मुलाकात भी कर सकते हैं। आपको बता दूं, आपको टेक्निकल फील्ड में अच्छा रहेगा। एज ए टेक्नीशियन आप फील्ड में जा सकते हैं। टेक्नीशियन का मतलब अंदाजा लगा सकते हैं। टेक्निकल फील्ड बहुत सी लंबी होती है, बहुत लंबी होती है, उसमें कोई भी एक फील्ड चुनकर आप आगे बढ़ सकते हैं। टेक्निकल फील्ड आपके लिए अच्छा मुफीद रहेगी। टेक्नीशियन है क्योंकि आप में क्रिएटिविटी है, इंशाल्लाह ताला जिंदगी में खुशहाल रहोगे। आफ्टर वेरिंग द एग्जाम यू आर गेटिंग गुड रिजल्ट, सब ठीक हो जाए इंशाल्लाह ताला। विश ऑल द बेस्ट सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं चेन्नई से बात कर रहा हूँ, निसार अहमद। निसार अहमद चेन्नई से बात कर रहे हैं जी। आपको अपने बारे में बात करना है? नहीं, मैं आके मेरे लड़के के बारे में इलाज हुआ था, वो मेहर शुक्रिया बताना चाहते हैं। ठीक है, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है, आप उनसे खुद बात कर सकते हैं। सलाम अलैकुम निसार अहमद साहब। वालेकुम सलाम, खैरियत डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल व करम है। चेन्नई से हैं आप? जी माशाअल्लाह, आपका चेहरा नूरानी चेहरा, अल्लाह जी, आपके अमाल को कबूल करे इंशाल्लाह। बहुत दिल से बहुत खुशी लगती है, आपका चेहरा में इतना वालेकुम नूर है। सलाम। बताइए निसार अहमद साहब। जी जी जी, हाँ बोलिए, आपके कैसे आपके बेटे को पहनने के बाद? अल्लाह का फजल व करम है। ओके, अल्लाह के हुक्म से और आपके दुआओं से बहुत बेहतर है। ओके, वो डालने के बाद ओके, उसका ये भी जिस्म में जो बीमारी थी वो बाहर पड़ी, ओके, वो हम भी नहीं जानते थे। ओके, अल्लाह के फजल व करम से उसका इलाज भी हुआ माशाअल्लाह, और मंगना भी हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह। अब जुलाई के महीने में शादी भी रख ली है। सुबहान अल्लाह, जितनी भी तारीफें करें अल्लाह रब्बुल इज्जत की कम है। तो आपके लड़के की सेहत भी ठीक हो गई, मंगनी भी हो गई, शादी भी तय हो गई। आपका चेहरा मैं नहीं बोलता साहब, मतलब डायरेक्ट नहीं आया मेरे पास, हमको फोन, शायद आपको फोन में बात हुई थी ना हमसे, आपसे? हाँ, फोन में बात हुई थी। हाँ, इमो में बात हुई थी, वीडियो का मतलब कॉन्फ्रेंस कॉल था हम दोनों का, तो हमने देखा था उनको। बहुत खुशी लगती है निसार अहमद साहब, दुआ गो हूँ कि आपने फ़ोन किया और आपके लड़के के बारे में जो तजुर्बा था आपने बताया, इसके लिए मैं आपका बेहद दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और दुआ करता हूँ कि आपके बेटे की ज़िंदगी में इसी तरीके से खुशहाल रहें। जिस तरीके से आपने जो मोहब्बत इजहार किया है फ़ोन कर, यही मोहब्बत ज़िंदगी भर रहेगी इंशाल्लाह ताला। आमीन या रब्बल आलमीन। डॉक्टर साहब बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो मतलब जिनको फायदा होता है और खोने के बाद लोग भूल जाते हैं। जी जी, ऐसे देखिए फातिमा साहिबा और निसार साहब उसमें से एक हैं जो है शुक्रिया का फोन करते हैं साहब, क्योंकि अल्लाह ने इसमें असर रखा है, क्योंकि नेमतें हैं। जी हाँ, जी हाँ। जब इंसान फ्रूट खाता है तो अपने जिस्मानी को स्ट्रांग करने के लिए, मैं कितनी बार कह चुका हूँ, हर चीज दुनिया में जो पैदा की इंसान के काम आने के लिए पैदा किया, मगर इंसान को चाहिए कि अपनी अक्ल को इस्तेमाल करें। अक्ल से अभी तो बताया ना मैं, अब गर्मी का जमाना है, लेकिन इंसान क्या कर रहे हैं, गर्मी से बचने के लिए एसी को तैयार किया है। इंसान की अक्ल ने काम किया। अगर इंसान सोच ले कि अल्लाह ने नेचर बना दिया ऐसे रहना बोले तो ऐसी परेशानी रहेगी। तो अपने इस्तिताअत के हिसाब से जो पैसे वाले हैं थोड़ा एयर कंडीशन लगा लेते हैं, एसी लगा लेते हैं, थोड़ा मिडिल क्लास कूलर रख लेते हैं, और थोड़ा उससे कम वाले भी फैन रख लेते हैं। मतलब कुछ ना कुछ जरिया ढूंढ लेते हैं। जी जी, इंसान अक्ल इस्तेमाल करते हैं। ये हिसाब से हर परेशानी का हल इसमें है, इंशाअल्लाह ताला जिंदगी में खुशहाल रहेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, टीवी की आवाज़ बंद कर दें आप। हेलो हेलो जी, टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, उसके बाद अपना नाम, टीवी की आवाज़ बंद कीजिए, नाम बताइए अपना। हेलो जी, नाम बताइए अपना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम, नाम बताइए अपना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। आपका प्रोग्राम बहुत ज्यादा पसंद है हमारे को। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। आप कहाँ से बोल रहे हैं, कौन? अपनी बेटी के बारे में पूछना है जी, नाम बताइए बेटी का। बेटी का नाम बताइए। आप हमारी बेटी के बारे में पूछना है। टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, आप टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, टीवी की आवाज बंद नहीं कर रहे। डेट ऑफ बर्थ 18/5/1995।
क्या करेंगे डॉक्टर साहब, ये सवाल लेंगे, इसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा। इतनी उम्मीद से फोन किए। टाइम बता दीजिए, आप टाइम बता दीजिए, वक्त बता दीजिएगा। 1995। वक्त क्या है? 6:30 बजे है। सुबह में शाम में है? 6:30 बजे है। सुबह में शाम में? शाम में। ओके, आप आराम से फोन रख दीजिए, सुन लीजिए आराम से, हम बता देंगे आपको। जैसे कि आपने आपकी बेटी का डेट ऑफ बर्थ दिया है, जुमेरात के दिन उनका जन्म हुआ है। अगर जायचा देखा जाए तो सल्फर न रहे, खुद पैसा कमाएंगी, हेल्पिंग नेचर हैं, हार्ड वर्कर हैं, थोड़ा गुस्सा का मिजाज है, जल्दबाज हैं, शार्ट टेम्पर हैं, टीचिंग फील्ड इनके लिए मुफीद है, एक अच्छी टीचर साबित होगी। लेकिन थोड़ा जुपिटर गर्दिश में है, शादी में मुश्किलात आएंगी, रिश्ते आएंगे, देखेंगे थोड़ा मुश्किलात, मतलब शादी सेट होना थोड़ा आपके लिए मुश्किल रहेगा। शादी के बाद मुश्किलात बढ़ सकती हैं, उसको रोकना है। साथ में सन भी खराब है, जिसकी वजह से थोड़ा हेल्थ का इश्यूज आ रहा है। स्पेशली हाउस ऑफ प्लानिंग जिसको कहा जाता है, 5वां घर भी थोड़ा डैमेज है। स्पेशली गायनोकोलॉजी इन्फेक्शंस कहा जाता है, थोड़ा यूटरस का प्रॉब्लम रहेगा। एक बार डॉक्टर के पास जाकर चेकअप करा लीजिएगा इंशाल्लाह ताला। उससे बाहर निकलने के लिए एक रूबी पहनाना है आपकी बेटी के लिए, साथ में एक येलो सफेयर पहनाना है। येलो सफेयर से क्या होगा, तरक्की मिलेगी, शादी अच्छी होगी, अच्छा लड़का मिलेगा, खुशहाल रहेंगे। ये रूबी पहनने के बाद सेहत अच्छी हो जाएगी, लाइफ में स्टेबिलिटी आएगा, डेवलपमेंट आएगा, खुशहाल रहेंगे। विश ऑल द बेस्ट। नादरीन से ख्वाहिश है, जब लाइन मिल जाती है आप अपने टीवी के वॉल्यूम कम कर दें, क्योंकि हम जब बात करते हैं आपको 3-4 सेकंड के बाद हमारी आवाज सुनती है तो डिस्टर्बेंस रहेगा। हम चाहते हैं कि आप अपना टीवी का वॉल्यूम कम करके फोन में सुने इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं महबूब नगर से बात कर रहा हूँ, मोहम्मद रियाजुल हसन। मोहम्मद रियाजुल हसन, आपको अपने बारे में बात करना है? नहीं, मेरे बच्चे के बारे में बात करना है। दूसरा बच्चा MBA करके है। नाम बताइए उनका बेटे का। नाम मोहम्मद नवाजुल हसन। मोहम्मद नवाजुल हसन। 1 सितंबर 1992। सितंबर 1992। 1 सितंबर 1992। जी, वक्त सुबह 10 बजे। सुबह 10 बजे। जी, उसे ये इसका बाहर का 2-3 जगह पे लगा है, खेल MBA करके है वो। जी डॉक्टर साहब से आप सवाल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद रियाजुल हसन साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं करीमनगर से बात कर रहा हूँ। बोलिए, कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छा हूँ। ये मेरा एक बच्चा है नवाजुल हसन, मोहम्मद नवाजुल हसन, MBA करके है। समझ गया। बाहर का लगने के बाद 3 महीने के बाद एजेंट फिर पैसे वापस कर दिया, और हैदराबाद में भी जॉब बराबर सेट नहीं हो रहा। जरा उसको बाहर के जैसा सेटवे जैसा करना जरूर इंशाल्लाह। रियाजुल हसन साहब आराम से सुनिएगा, फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह अच्छी जॉब भी मिलेगी, सेटलमेंट हो जाएगा, खुशहाल रहेंगे। आपके बेटे का जन्म हुआ है, मंगल के दिन पैदा हुआ है, और उनका जो असेंडेंट देखा जाए, जैसे कि आपने टाइम दिया 10 बजे का टाइम दिया है, लिब्रा का है, और उनका मून साइन भी लिब्रा का है। बच्चा स्मार्ट है, मैनेजमेंट फील्ड में ऑलरेडी जा चुका है, क्योंकि लिब्रा जो होता है वीनस का होता है। वीनस इज डिपार्टमेंट ऑफ फिनांस, जैसे कि मैनेजमेंट कहा जाता है, उस फील्ड में अच्छा एक कामयाबी मिलेगी। लेकिन जॉब के लिए प्रॉब्लम क्या है, उसका जो असेंडेंट लॉर्ड होता है 12वें घर में नीचे गिर चुका है। मैं कितनी बार कह चुका हूँ, असेंडेंट का 6, 8, 12वें घर में आना इंसान को नामुकम्मल कर देता है, परेशान करता है, डिस्टर्ब करता है। इसी तरीके से आपके बेटे की जिंदगी में थोड़ा परेशानियां हो रही हैं। MBA करने के बाद भी जॉब में मुश्किलात आ रही हैं। इसकी मेन रीजन है वीनस का नीचे गिरना। साथ में जो हाउस ऑफ प्रोफेशन कहा जाता है, 10th हाउस का जो मालिक होता है मेर्क्यूरी रेट्रोग्रेटेड, गर्दिश में, जिसकी वजह से लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं मिल रहा है, डेवलपमेंट नहीं मिल रहा है। आपके बेटे को अच्छा जॉब आने के लिए, जिंदगी में खुशहाल रहने के, बच्चा बाहर जाने के लिए आपको करना है एक एमराल्ड पन्ना कहा जाता है, मिनिमम 3 कैरेट का रहना है। साथ में सफेद फुकराज, व्हाइट सफेद कहते हैं, दोनों बनाकर आपके बेटे को मिनिमम 3-3 कैरेट का पहना है। इंशाल्लाह ताला अच्छी जॉब मिलेगी, बाहर की दुनिया में जाएगा, कल गल्फ कंट्री इनके लिए मुफीद रहेगी, खुशहाल रहेंगे। विश ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है आपके अपने खास प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में, और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं एमिनेंट जेमिनोलॉजिस्ट और किंग ऑफ जेम्स के नाम से जाने वाले डॉक्टर इमाम रजा साहब। डॉक्टर साहब, एक बार फिर आपका खैर मकदम है। शुक्रिया जनाब। ब्रेक के बाद पहले कॉलर को शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं श्रीनगर से बोल रहा हूँ। नाम बताइए अपना। मेरा नाम फयाज अहमद कुरैशी है। जी, फयाज अहमद कुरैशी। अपने बारे में बात करना आपको? जी हाँ सर।
جی اپنی تاریخ پیدائش بتا دیجیے. میرا تاریخ ہے 7 مارچ 67. وقت بتائیں گے کیا؟ وقت 12 بجے رات بدوار. 12 بجے رات. ڈاکٹر ایم ایم رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ ان سے سوال کر سکتے ہیں اور اپنی پریشانیوں کا حل جان سکتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم. فیاض احمد قریشی صاحب. جی ہاں السلام علیکم سر. کیسے ہیں جناب؟ بس میں اپنی اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں کہ میری ہمیشہ تنگی رہتی ہے اور پریشانی رہتی ہے. ہمیشہ تنگی ہے, پریشانی ہے, پریشانی رہتی ہے. محنت زیادہ کرتے رزلٹ کم ملتا. ہاں جی. محنت زیادہ کرتے ہیں رزلٹ بہت کم ملتا ہے آپ کو. جی ہاں سر. سبھی کا بھلا سوچنے کسی کا سپورٹ نہیں ملتا آپ کو. وہی سر. مائنڈ کنفیوژن رہتا, صحیح سے فیصلہ نہیں لے سکتے آپ, ڈیلیما میں رہتے ہیں. ہر کام میں رکاوٹ ہے, کام نزدیک تک آنا پینڈنگ, کام میں ترقی نہیں, ڈیولپمنٹ نہیں ہے, کام رکا ہوا ہے, کسی کا سپورٹ بھی نہیں مل رہا ہے. پلاننگز پورے فیل, جتنے پلاننگ کرتے پورے فیل ہوتے جاتے ہیں. لائف میں کمپلیکیشن زیادہ ہیں, تہمتیں لگتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں. جو لوگ آپ سے فائدہ اٹھاتے ہیں وہی آپ کو پریشان کرتے ہیں. گھر میں بھی سکون نہیں ہے آپ کو, ہیلتھ کا ایشوز چل رہا ہے, بچپن سے تھوڑا غریبی دیکھی, پریشانی دیکھی, مصیبت دیکھی, ابھی بھی دیکھ رہے ہیں. پریشر زیادہ ہے, ٹینشن ہے, فائنانشلی گروتھ نہیں, زیرو کی زندگی ہے. مطلب کیا ہوا, 50 سال کی زندگی تک آ گئے, زندگی میں زیرو ہے, پریشان ہے, قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں. اس کا مین کارن ہے جوپیٹر کا خراب ہونا, سن کا خراب ہونا, جس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں خرابی آئی, پریشانی آ گئی. اس سے باہر نکلنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ ایلو سفیر پہنے, پکراج کہا جاتا ہے, ساتھ میں ایک روبی پہننا ہے, منیمم 3 کیرٹ کا رہنا ہے. دھیان رہے, جواہرات اصلی رہیں, نیچرل رہیں, ورجنل رہیں, انشاءاللہ تبھی جا کے آپ کو اچھا رزلٹ ملے گا. یہ دونوں پہننے کے بعد 2016 جون کے بعد زندگی میں اچھے کام ہوں گے, نئے نئے کانٹیکٹس ملیں گے, زندگی میں خوشی ملے گی, صحت اچھی رہے گی, سکون ملے گا. وش یو آل دا بیسٹ سر. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ شبانہ صاحبہ ہے, جلگاؤں سے بات کر رہے ہیں, مہاراشٹر. شبانہ صاحبہ. ہاں یہ آپ کو اپنے بارے میں سوال کرنا ہے؟ ہاں رضا صاحب کو ہمارا سلام ہوگی. جی وعلیکم السلام. تاریخ پیدائش بتا دیجیے اپنی. ہاں تاریخ پیدائش ہے, لڑکی کے بارے میں جاننا ہے. تاریخ اس کی 1991. لڑکی کا نام کیا, بیٹی کا نام کیا آپ کی؟ مبشرہ. مبشرہ. ہاں جی ان کی تاریخ پیدائش؟ ان کی تاریخ پیدائش ہے 1991. اور مہینہ تاریخ کچھ بتائیں گے؟ 8/11/91. 8/11/91. وقت کچھ پتا ہے؟ 7 ساڑھے 7 کا وقت ہے. صبح شام کا؟ صبح کا. ٹھیک ہے. ڈاکٹر ایم ایم رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, آپ ان سے سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم. مبشرہ صاحبہ. وعلیکم السلام. شبانہ صاحبہ ہیں نا آپ؟ جی ہاں ہاں شبانہ صاحب. تو مبشرہ کے بارے میں جاننا ہے آپ کو. ہاں اس کی شادی ٹوٹ گئی 2 بار. 2 بار شادی ٹوٹ چکی ہے. ہاں ہاں اور بہت پریشانی ہے اس کی. انشاءاللہ اللہ آپ کو صبر دے, آپ کی بیٹی کی زندگی میں خوشی دے. پروگرام بہت اچھا لگا. شکریہ شکریہ. دعاؤں کا محتاج ہوں, دعا کیجیے گا بس. انشاءاللہ ہماری ہاں اسی طریقے سے خدمت خلق کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. دیکھیے گا آپ کی بیٹی کا جنم جمعے کا دن معلوم ہے آپ کو؟ ہاں ہاں جمعہ کے دن پیدا ہوئی آپ کی بیٹی, اور ان کا اسینڈنٹ جو دیکھا جائے تو اسکارپیو کا ہے. 12ویں گھر میں اپنے لاڈ کا, اپنے اسینڈنٹ کا 12ویں گھر میں بیٹھا ہوا ہے مارس, جس کی وجہ سے دیر از نو پیسفل میریڈ لائف. شادی کے لائف میں مشکلات, پریشانیاں, ڈسٹربنس ہیں. 7ویں گھر کا جو مالک ہوتا ہے وینس بھی نیچے گر چکا ہے, جوپیٹر بھی خراب ہے, سن بھی خراب ہے, جس کی وجہ سے چھوٹی عمر ہے بچی کی, 25 سال کی ہے. 2 شادیاں ٹوٹ چکی ہیں, تیسری میں بھی پرابلم آنے والی ہیں. اس کو روکنا ہے آپ کو. یہ پرابلمس کیوں ہوتی ہیں, یہ مشکلات کیوں ہوتے ہیں؟ جب ستارے گردش میں آ جاتے ہیں, یہ سارے مشکلات ہوتے ہیں انسان کی زندگی میں. اس سے باہر نکلنے کے لیے ڈیولپ کرنا پڑتا ہے, اس سے آگے بڑھنے کے لیے اس کو مطلب پیس کرنا پڑتا ہے, جس کے لیے آپ کو بیٹی کو ایک ایلو سفر پہنانا ہے, پکراج کہتے ہیں, ساتھ میں ایک روبی پہنانا ہے. یہ دونوں بنا کر پہنانا ہے انشاءاللہ. اور بھی دوسری بھی ریمیڈی بتانا ہے میرے کو. ہمارے جو نمبرز ہیں ان نمبر سے کال لیجئے گا اور کال کیجئے گا, اور ہمارے جو اسٹاف رہتے ہیں, جو بھی ہمارا جو کال سینٹر رہتا ہے, ان میں آپ پرٹیکولرلی بتا دیجئے گا کہ شبانہ صاحبہ ہمارا نام ہے, ہم نے ڈاکٹر صاحب سے ٹی وی میں بات کیا ہے, لائن ملی, لائیو شو میں بات ہوئی ہے, ان سے ہم پرسنل بات کریں انشاءاللہ. آن لائن ہم کو پاس کریں گے, تھوڑا ہم سے آپ سے ڈسکس بھی کرنا ہے انشاءاللہ. ہم بتائیں گے آگے ایسے مشکلات نہ آئیں, زندگی میں خوشی رہے, کیونکہ پریشانی کا مرحلہ ہوتا ہے. 2 بار پرابلم ہو چکی ہے اور آگے ایسی پرابلم نہیں ہونا ہے. عمر چھوٹی ہے, بچی خوشحال رہنا ہے, اور خوشحال رہنے کے لیے ہم جو بتائیں اس ریمیڈی کو فالو کیجیے, انشاءاللہ تعالیٰ زندگی میں خوشحال رہیں گے. وش یو آل دا بیسٹ. دیکھیے راہیل صاحب, ایسے پرابلمس بہت سے لوگ آتے ہیں,
2 शादियां प्रॉब्लम हो चुकी हैं, कुछ लोगों की 3 भी प्रॉब्लम हो चुके हैं, लेकिन क्या करते हैं वो लोग नहीं सोचते कि प्रॉब्लम क्यों आ रही है। वो सोचते हैं कि पहला जो ब्रेक हो गया, चलो जो भी था हो गया, किस्मत में था, किस्मत के ऊपर डाल देते हैं, हर चीज़ को किस्मत में डाल देते हैं, दूसरा भी प्रॉब्लम हो जाता है। तो इंसानों को चाहिए कि हर आदमी को चाहिए कि जब ये प्रॉब्लम्स आती हैं तो सबसे पहले उसकी जानकारी कर लेना कि मुश्किलात क्यों आ रहे हैं। वही तो हमारा इन्फॉर्मेशन देने का काम है, इसी में हमने रिसर्च किया है, इसी में डॉक्टरेट किया है, तो इसीलिए तो हम लोगों को सर्विस दे रहे हैं। देखिए आप लड़की का देखा जाए तो 3 बार देयर इज नो पीस ऑफ मैरिज, आगे भी प्रॉब्लम है, आगे प्रॉब्लम है। जवाहर के अलावा दूसरी रेमेडीज भी होती है, दवाई वगैरह। इंशाल्लाह ताला अगर हमारे नंबर्स पे कॉल करेंगे इंशाल्लाह ताला हम लोग सही रास्ता बताएंगे, जिंदगी में खुशहाल रहेंगे, ये हिसाब से रहेगा। तो यहाँ पे नाज़रीन के लिए बता दूं, नॉट ओनली मैरिजेस, कुछ लोग जो होते हैं कारोबार करते हैं, परेशानी थोड़ा खर्चे में डूब रहे हैं, आपको थोड़ा होशियारी लेना है। जीरो में जाने के बाद दिमाग में आने से कुछ फायदा नहीं है। थोड़ा प्रॉब्लम आ गया, उससे बाहर निकलने के लिए आपको सडनली कुछ मतलब इन्फॉर्मेशन लेना है, आपकी जिंदगी में जो मुश्किलात क्यों आ रहे हैं उसे आगे बढ़ने के लिए। एक बार अगर आप इन्फॉर्मेशन ले लेंगे इंशाल्लाह ताला आपको मालूम हो जाएगा कि मुश्किलात क्यों आ रही हैं, मेरे को क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे जिंदगी में आगे जाना है। एक बार जानकारी लेने के बाद रेमेडी तो है जवाहर का करिश्मा इंशाल्लाह ताला। ये जवाहर अपने लाने के बाद जिंदगी में खुशहाल रहेगी इंशाल्लाह ताला। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मेरा तो आप कॉल फोन पे रहने के लिए बोले, मैं अभी बतलाया था ना आपको। जी नाम बताइए आप। मेरा नाम मजहर खान है। मौलाना मजहर खान जी। आपको अपने बारे में बात करना है? नहीं, मेरी बेटी के बारे में बात करना है। आपको इससे पहले बोला ना मैं, तो आप बोले कॉल पे रहिए, मैं बात कराता हूँ बोले। वो तो अंदर जी 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 आपने सही जगह कॉल किया, वो पीसीआर में आपसे बात की गई होगी। बेटी का नाम बताइए। जी बेटी का नाम बताइए। हाँ बेटी का नाम बोला ना मैं, असरा यास्मीन। असरा? जी जी असरा यास्मीन जी। तारीख पैदाइश? हाँ ये पैदाइश है देखिए 17/9/1980। वक्त तो बताएंगे कुछ? हाँ वक्त है देखिए नाइट में 9:30 बजे, 4 शुम्बे का दिन। जी क्या परेशानी है, क्या जानना चाह रहे हैं? डॉक्टर इमाम रजा साहब से आप डायरेक्ट सवाल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम मौलाना मजहर खान साहब। जी वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब। कैसे हैं मौलाना साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। मेरी बेटी के बारे में पूछ रहा हूँ, जरा आप बतलाइए साहब। इंशाल्लाह जरूर बताएंगे। आपकी बेटी का जो आपने डेट ऑफ बर्थ दिया है, इन्फॉर्मेशन दिया है, अगर देखा जाए तो उनका जो टारस का असेंडेंट है, जी जी, थोड़ा सेल्फ अर्निंग है, हेल्पिंग नेचर है, हार्ड वर्कर है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। माशाल्लाह माशाल्लाह, वही तो है। देखिए अगर आपने डेट ऑफ बर्थ सही दे दिया, टाइम ऑफ बर्थ सही दे दिया तो कोई सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं रहेगी इंशाल्लाह ताला। लेकिन क्या और आपकी बेटी में हर काम में रुकावट आ रहा है, काम में तरक्की नहीं मिल रही, डेवलपमेंट नहीं मिल रहा है। हाउस ऑफ कोऑपरेशन जिसको कहा जाता है, 7वें घर का जो मालिक होता है 6ठे घर में बैठा हुआ है, थोड़ा पर्सनल लाइफ में डिस्टर्बेंस आएगा, थोड़ा शादी की लाइफ में मुश्किलात आएंगी, परेशानी आएंगी, थोड़ा हेल्थ का इश्यूज रहेगा, कमर में ज्यादा दर्द रहेगा और किडनी में स्टोन भी आने के ज्यादा इम्कानात दिखा रहे हैं। इससे बाहर निकलने के लिए सबसे पहले आपको मेर्क्यूरी को स्ट्रॉन्ग करना है, साथ में आकर वीनस को स्ट्रॉन्ग करना है। मेर्क्यूरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एमराल्ड पहनना है मिनिमम 3 कैरेट का, छोटी उंगली में पहनाना है। साथ में वीनस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मिनिमम 3 कैरेट का व्हाइट सफेर पहनाना है, मिडल फिंगर में पहनाना है। ये दोनों पहनाने के बाद आपकी बेटी की जो जिंदगी में जो परेशानी है, जो पर्सनल लाइफ डिस्टर्बेंस है, उससे बाहर निकल जाएंगे। रहा सुकून का सवाल, इंशाल्लाह ताला ये दोनों पहनने के बाद 2016 मई के बाद जिंदगी खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। जवाहरात का करिश्मा और या रासिक जेम्स और ज्वेलर्स से लोगों को किस तरह से फ़ायदा हुआ है, किस तरह से फ़ायदा पहुंचा है, लोगों का इसके बारे में क्या कहना है, आइए इस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। बहुत बाबरकत है वो अल्लाह जिसके कब्ज़े में दोनों जहान की बादशाही है और वो हर चीज़ पर कादिर है। उसकी कुदरत का एक अजीम करिश्मा है ये जहान फ़ानी, और इस जहान फ़ानी की अशरफ तरीन तख्लीक है हज़रत इंसान। कायनात में इंसान के जीने के लिए अल्लाह ताला ने एक निज़ाम मुकर्रर किया है जिसमें इम्तिहान भी है, आजमाइश भी, राहत भी है, तकलीफ भी, सेहत भी है, बीमारी भी, और साथ साथ नजात की राहें भी और जरिए भी। इंसान को मालिक व मौला ने जहन जैसी नेमत से नवाजा कि इल्म सीखो और मुश्किलात का हल तलाश करो। इंसान को जिंदगी के सफर में सेहत और तंदुरुस्ती के अलावा भी
کئی اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور کامیابی اور شفا تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، لیکن راہ انسان کو بتائی ہے، ہر پریشانی کے ساتھ اس کا حل بھی دیا ہے۔ کھوج لگانا حضرت انسان کے ذمے ہے۔ جیسے طبیب یا ڈاکٹر صحت یابی کے لیے دوا دیتا ہے، ویسے ہی دوسری پریشانیوں کے لیے نجات اور علاج کے کئی اور ذرائع بھی ہیں۔ کوئی ذریعہ مشکل، کوئی سخت تو کوئی خوبصورت۔ جی ہاں، چونکیے نہیں، قادر مطلق نے کائنات کی ہر شے انسان کے استعمال کے لیے ہی بنائی ہے۔ راسک جیمز اینڈ جویلرز۔ یہ جانتے ہیں کہ عام طور پر لکی سٹون اور جیمز سٹون جسے کہا جاتا ہے، اس کی خصوصیات کیا ہیں؟ یہ نعمت اللہ ہیں، یعنی اللہ کی نعمتیں۔ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے یاقوت اور مرجان کا ذکر کیا ہے۔ پتھر انوکھی خصوصیات کا ٹھوس مجموعہ ہوتے ہیں، لیکن پتھروں اور جواہرات کے ڈھیر سے معالج یعنی علاج کرنے والے کی خصوصیت رکھنے والے گوہر نایاب کو ڈھونڈ نکالنا ماہر نظر یا ایکسپرٹ کا فن ہوتا ہے۔ ایسے ہی ماہر فنکار راسک جیمز اینڈ جویلرز 50 سالوں سے گوہروں کے ذریعے لوگوں کی خدمت کا کام انجام دیتے آ رہے ہیں۔ راسک کے تمام جیمز مائن سے نکالے گئے ہیں۔ اصلی جیمز کو پرکھ کر تراش کر 100% وارنٹی اور سند و سرٹیفکیٹ کے ساتھ دیے جاتے ہیں۔ ہمارے پاس قدرتی روبی، یلو سفائر، نیلم جیسے بہترین و بیش قیمتی جیمز دستیاب ہیں۔ یہ جیمز قدرتی طور پر بے حد اثردار ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورج کی تپش سے انسان کو صحت ملتی ہے، چاند کی ٹھنڈک سے انسان کو سکون ملتا ہے، پانی کے پینے سے انسان کی پیاس بجھتی ہے، اسی طریقے سے ایک صحیح گوہر کے استعمال سے انسان کی زندگی میں جو بھی پریشانی ہے اس پریشانی کو دور کیا جا سکتا ہے، اپنی منزل کو انسان پہنچ سکتا ہے، خوشحال رہ سکتا ہے۔ راسک جیمز جیولرز رضا صاحب جو حیدرآباد میں یہاں دکان لگائے ہیں، اور ڈاکٹر روشن صاحب، یہ بہت بڑا ریسرچ کرنے کے بعد اور یہ آدمی کے نام سے اور اسٹار کے حساب سے اسے پتاروں کے تعلق سے دیکھ کے غور کر کے، چونکہ وہ میں دونوں بھائیوں نے اس میں پی ایچ ڈی کی ہے، کافی اچھی، میں سمجھتا ہوں ہندوستان میں کم لوگ ہیں جو انسان کے اسٹارس دیکھتے ہوئے اور ان کا لیے نگ جو ہے چوائس کرتے ہیں، تو وہ یہاں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، آ سکتے ہیں اس دکان کو، جس سے کافی لوگوں کو فائدہ ہوا ہے۔ مجھے بھی بہت سے لوگوں نے کہا، اور میرے محبوب نگر ایم پی صاحب بھی 2 سال پہلے بہت کمزور ہو گئے تھے، یہاں آپ کے پاس آ کر نگ لینے کے بعد سے رضا بھائی کے پاس سے کافی ہیلتھ میں تبدیلی آئی، صحت کافی اچھی ہے، اور اسلام میں بھی حقیق پہنتے ہیں لوگ، نگ پہنا کرتے تھے۔ بہت سے لوگ جب مدینہ شریف جاتے ہیں تو میں دیکھا ہوں وہ حقیق خرید کر لاتے ہیں، اور یہاں پر رضا بھائی اور ان کی فیملی بہت اچھی سروس دے رہے ہیں، اور میں خاص طور سے ایم حسین صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ راسک جیمز اینڈ جویلرز، جہاں پر عوام کی پریشانیوں کے حل کے ساتھ ساتھ اصلی گوہر بھی سرٹیفکیٹ کے ساتھ دیے جاتے ہیں۔ اگر آپ بھی اپنی زندگی میں پریشان ہیں، پریشانی پیسوں کی ہو، پریشانی صحت کی ہو، آپ شادی بیاہ کے بارے میں پریشان ہوں، بار بار تلاش کرنے کے بعد بھی نوکری نہیں مل رہی ہو، کاروبار میں ترقی چاہتے ہوں، یا پھر بیرونی ملک جانا چاہتے ہوں، یا پھر کوئی بھی مشکلات ہوں، اس کے لیے ہم سے رابطہ قائم کریں۔ راسک جیمز اینڈ جویلرز ایک ایسا مقام ہے جہاں پر عام آدمی سے لے کر مشہور و معروف نامور ہستیوں نے بھی ان کی خدمات حاصل کی۔ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ ہماری ریاست میں گوہروں کے لیے بالکل صحیح مقام راسک جیمز اینڈ جویلرز ہے۔ ان گوہروں سے بیماریوں کا علاج بھی کر سکتے ہیں۔ ان گوہروں کو پہنیے کیونکہ یہ گوہر سب کے لیے بہتر اور فائدہ مند ہے۔ راسک جیمز اینڈ جویلرز۔ میں بنگلور کا میئر بی وینکٹیش مورتی۔ آپ کو چاہے کاروبار کی پریشانی ہو یا سیاسی پریشانی یا پھر گھریلو پریشانی، آپ سیدھے راسک جیمز اینڈ جویلرز سے ملاقات کریں اور اپنی پریشانیوں کو حل کریں۔ آج میں جہاں پر بھی ہوں اس کی وجہ راسک جیمز اینڈ جویلرز۔ راسک جیمز اینڈ جویلرز، بنجارہ ہلز روڈ نمبر 12، قیمتی اسکوائر، فرسٹ فلور، B4، حیدرآباد۔ ہمارا بنگلور کا پتہ ہے G3 بریگیڈ گارڈن، 19 چرچ اسٹریٹ، بنگلور۔ ای میل rasikgemshyd@gmail.com، ویب سائٹ rasikgems.com۔
can change your love. Only one visit can change your life. تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ راسک جیمس اور جویلرز نے لوگوں کی زندگی میں کس طرح سے خوشحالی لے کر آئی. اگر آپ بھی اپنی زندگی میں خوشحالی لانا چاہتے ہیں, اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں, تو آپ اس پروگرام میں کال کر سکتے ہیں. نمبر ہمارے لگاتار اسکرول ہو رہے ہیں, آپ اس پہ کال کر کے اگر آپ کا تعلق حیدرآباد یا آس پاس کے اضلاع سے ہے تو آپ دیے ہوئے نمبر پہ کال کر سکتے ہیں اور ڈاکٹر ایم رضا صاحب سے بات کر سکتے ہیں, ان سے اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں, ان کے پاس جا کے اپنی پریشانیوں کا حل جان سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو لوگ جو ہمارے ناظرین بنگلور سے تعلق رکھتے ہیں یا اس کے آس پاس سے تعلق رکھتے ہیں, وہ ڈاکٹر روشن صاحب سے بات کر سکتے ہیں, اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں اور اپنی پریشانیوں کا حل جان سکتے ہیں. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور شامل کرتے ہیں ایک اور کالر کو. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں تسنیمہ بات کر رہی ہوں بنگلور سے. تسنیمہ؟ ہاں جی. جی بنگلور سے بات کر رہی ہیں. اپنی آپ کو اپنے بارے میں بات کرنا ہے؟ نہیں, میرے بہن کے بارے میں مجھے پوچھنا ہے. بہن کا نام بتائیے. ان کا نام سمینہ خانم ہے. سمینہ خانم. ہاں. تاریخ پیدائش؟ 10 مارچ. جی. 1988. وقت معلوم ہے آپ کو؟ جی نہیں. ٹھیک ہے, کیا جاننا چاہتی ہیں, کیا پریشانی ہے؟ ڈاکٹر ایم رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ ڈائریکٹ سوال کر سکتی ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم تسلیمہ صاحبہ. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب. کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا فضل ٹھیک ہے. ہمارے ابو بھی آپ کے بڑے بھائی سے ملاقات کر چکے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, سلامت رکھیے. بنگلور میں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. وہ انہوں نے تو ابو کو یہ ایلو سفر اور روبی اور پرل پہننے کے لیے بولا ہے, اس کو آرڈر دے چکے ہیں ہم. ماشاء اللہ پہن لیجیے, آنے کے بعد پہنیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ تیار ہو جائے گی, جلد تیار ہو جائے گی انشاءاللہ. لا کر پہن لیجیے گا, زندگی خوشحال رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ. جواہرات پہننے کے لیے توفیق ہونا ہے. اپنے آپ انسان کوئی نہیں پہن سکتا, جب تک توفیق نہیں ہوتی جواہرات نہیں پہن سکتے کوئی بھی. بتائیے آپ کی بہن کے بارے میں کیا جاننا ہے؟ جیسے کہ ان کی شادی ہو کے آلموسٹ 6 ایئرز ہو گئے ہیں. اوکے. شادی ہونے کے 1 سال بعد بہت پرابلمس ہوئے ہیں ان کو. طبیعت ٹھیک نہیں ہے, بچے نہیں ہو رہے, ابھی تک ان کو ایک بھی بچہ نہیں ہے. تو چلڈرن پرابلم ہے, ہاؤس آف پلاننگ ڈیمیج ہے, تھوڑا مشکلات ہے, یوٹرس کا پرابلم ہے, تھوڑا فائبر ملتا تھوڑا پرابلمس آتا ہے, گینیکل انفیکشنز بھی ہیں ان کو, تھوڑا مشکلات بھی ہیں کیونکہ ان کا جو اگر دیکھا جمعرات کے دن جنم ہوا ہے اور ان کا پائسس کا ہے, جوپیٹر خراب ہے, 12ویں گھر میں بیٹھا ہوا ہے, جس کی وجہ سے تھوڑا بچوں میں تھوڑا مشکلات آ رہی ہیں, تھوڑا ٹینشن آ رہا ہے, ڈیلے ہو رہے ہیں, لیٹ پریگننسی کہا جاتا ہے, ابورشنز بھی ہو جاتے ہیں, مس گیریج بھی ہوتا ہے. ساتھ میں سن خراب ہو چکا ہے جس کی وجہ سے شادی کی لائف میں بھی سکون نہیں ہے, ہیلتھ بھی پرابلم ہے. آپ کی بہن تھوڑا ہمت ہار چکی ہیں, تھوڑا ڈپریشن میں رہتی ہیں, زیادہ خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس سے باہر نکالنے کے لیے آپ کو چاہیے گا ایک روبی, ساتھ میں ایک یلو سفر. آپ کو تو پلیس معلوم ہے, ہمارے بڑے بھائی ڈاکٹر روشن صاحب کے پاس آلریڈی آپ کے ابو کے لیے لے چکے ہیں, تو آپ کی بہن کے لیے بھی ایک یلو سفر اور روبی ان کو بتائیے گا کہ ہم نے ٹی وی شو میں بات کیا تھا, تو وہ ریفرنس دے دیجیے گا. ایک یلو سفر روبی دونوں بنا کر اپنی بہن کو پہنائیں انشاءاللہ تعالیٰ. 2017 جنوری کے بعد خوشحالی ملے گی, خوشخبری ملے گی, خوشحال رہیں گے. وش یو آل دا بیسٹ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں ممبئی سے بول رہی ہوں, مجھے اپنی سسٹر کے بارے میں پتہ لگانا ہے. ان کا نام بتائیے سسٹر کا. سسٹر کا نام ہے آفرین فاطمہ. ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے 30th of September 1982 اور شام کی 4 بجے کی پیدائش ہے. جی آپ کیا جاننا چاہتی ہیں؟ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ڈاکٹر ایم رضا صاحب. مجھے جیمز کے بارے میں جیسے وہ بتا رہے ہیں وہ ساری چیزیں بتا دیں جیسے ڈیٹیل. جی نہیں, آپ ان سے خود بات کر سکتی ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم آفرین فاطمہ صاحبہ. وعلیکم السلام ڈاکٹر. کیسے ہیں میرے بہن؟ بڑھیا ہوں ایک دم. آپ کی بہن کے بارے میں جاننا ہے؟ جی جی. آپ کی بہن کا جنم ہوا ہے تھرسڈے کے دن, جمعرات کے دن پیدا ہوئی ہیں. جی جی. دیکھیے ایکچولی کیا ہے, ان میں کریٹیویٹی ہے, نالج ہے, ان میں جو ہے وزڈم ہے, ہیلپنگ نیچر ہیں, تھوڑا بولڈ ہیں, تھوڑا غصے کا مزاج ہے, جلد باز ہیں, ڈومینیٹنگ نیچر ہے, ضدی ہیں تھوڑا, لیکن ہر کام میں تھوڑا رکاوٹیں بہت آ رہی ہیں. پروفیشن میں تھوڑا مشکلات زیادہ دیکھ رہے ہیں, ترقی نہیں مل رہی ہے. ساتھ ہی ساتھ تھوڑا شادی کی لائف میں تھوڑا مشکلات ہیں, ٹینشن زیادہ ہیں. جیسے کہ آپ نے کہا اسٹونز کے بارے میں جاننا ہے. اسٹونز کی آپ کی بہن کے لیے ایک بلو سفیر پہنانا ہے, نیلم کہا جاتا ہے, ساتھ میں ایک امرال پہنانا ہے. یہ امرال پہننے سے آپ کی بہن میں کیا ہوگی, پلاننگز پورے ہوں گے, فلفل ہوں گے, پروفیشن میں آگے بڑھیں گی,
ऊंचे मकाम पर जाएं, क्योंकि मैनेजर स्किल्स हैं, टीम लीडर हैं, हार्ड वर्कर हैं, ये सभी खुसूसियात आपकी बहन में हैं। साथ में थोड़ा वीनस खराब है, सॉरी सैटर्न खराब है, जिसकी वजह से पर्सनल लाइफ में थोड़ा मुश्किलात आ रही हैं, थोड़ा टेंशन में हैं, घबराहट में हैं। इससे बाहर निकलने के लिए एक ब्लू सफ़ेद नीलम कहा जाता है, मिनिमम 3 कैरेट का रहना है। साथ में एक एमराल्ड पन्ना कहा जाता है, मिनिमम 3 कैरेट का रहना है। दोनों बनाकर पहनाई, इंशाअल्लाह ताला खुशहाल रहेंगी। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी आप तक हमारी आवाज़ पहुंच रही? हेलो अस्सलाम वालेकुम। टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, टीवी की आवाज़ बिल्कुल बंद कर दीजिए। हेलो हेलो, जी। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग सर। हम हेलो जी जी बोलिए बोलिए, नाम बताइए अपना। लासिया बात कर रहे हैं। लासिया कहाँ से बात कर रही? फ्रॉम चेन्नई से। चेन्नई से। आपको अपने बारे में जानना है? यस यस, हमारे बारे में ही, बट हम हमारे बारे में जानने के लिए कॉल नहीं करे। जी जी। डॉक्टर साहब को कंग्रेट्स बोलने के लिए कॉल करे। हम उनका पुराना क्लाइंट है। अच्छा, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है, आप उनसे खुद बात कर सकती हैं। गुड इवनिंग लासिया जी। अच्छी बात है, एक बार ट्रांसफर कर दी। गुड इवनिंग लासिया जी, बताइए। सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हैं, बताइए आप कैसे हैं? अच्छी हो सर, आपकी दुआ से। एंड आज प्रोग्राम देख रहे हैं सर, फ्रॉम स्टार्टिंग ऑनवर्ड्स। इट्स टू ब्लेस्ड सर। अल्लाह आपको ऐसी खुशी एंड कामयाबी देने के लिए हम ब्लेस करते हैं सर। हमारा टोटल फैमिली आपको ब्लेस कर रहे हैं सर। थैंक यू वेरी मच। एंड आपका प्रेयर्स एंड आपका दुआ एंड आपका ब्लेसिंग्स एंड आपका सर्विस ऐसी आगे बढ़ना है सर। हर एक लोग के मुंह पे मुस्कुराहट आना है, तकलीफ दूर होना है। इफ अल्लाह लिख के भिजा दिया तकलीफ को, बट वो तकलीफ हमको नहीं वी कांट महसूस नहीं करना है। ओके इंशाल्लाह, खुशी से कितना भी तकलीफ आने दो, फाइट करना है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, वही तो हम काम कर रहे हैं मुश्किलात को दूर करने के लिए। हमको दे दीजिए सर, वो दुआ हमको देने के लिए अल्लाह से एक बार ले लीजिए सर परमिशन। एंड थैंक यू सो मच सर फॉर योर सर्विस। एंड आई एम द कस्टमर ऑफ 2015 अक्टूबर क्लाइंट हूँ मैं। ओके, कैसा है आपको पहनने के बाद? हमको पहचान है सर आप? पहचान लिया, कैसे हैं आप पहनने के बाद? अच्छे हैं सर, अच्छे हैं। थैंक यू फॉर आस्किंग मी सर। एंड हमारा पेरेंट्स भी बहुत खुश है, हमारा मैरिज हो चुका है आपके दुआ से। कंग्रेचुलेशन, एंड आप भी आपका सर्विस ऐसी बढ़ा दीजिए। जीते रहो जीते रहो जीते रहो। ऐसे लोग जो वो खुशखबरी देते हैं, जो कॉल करके बताते हैं। थैंक यू सो मच सर। एंड चेन्नई पे भी यू आर मोस्ट वेलकम। एंड बहुत खुशी हो रही है, हमारे पास आ चुकी हैं। जी जी जी, तो सर्विस ले चुकी हैं और बहुत बहुत खुशी लग रहे हैं। इंशाल्लाह हम दुआ करेंगे कि जो जो उन्होंने डिमांड की, इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ करेंगे कि वो फुलफिल हो जाए, जिंदगी में खुशहाल रहें। विश यू ऑल द बेस्ट। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमारे नाज़रीन के सवालों के जवाब दिए। शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये था हमारा प्रोग्राम जवाहरत का करिश्मा। ये प्रोग्राम यहीं पे ख़त्म होता है। इसी के साथ अपने दोस्त अहमद राइल पाशा को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए ETV उर्दू। अल्लाह की असरात हैं। सूरज की तपिश से इंसान को सेहती मिलती है, चांद की ठंडक से इंसान को सुकून मिलता है, पानी के पीने से इंसान की प्यास बुझती है। उसी तरीके से एक सही घोर के इस्तेमाल से इंसान की जिंदगी में जो भी परेशानी है, उस परेशानी को दूर किया जा सकता है। अपनी मंजिल को इंसान पहुंच सकता है, खुशहाल रह सकता है। अगर आप अपनी जिंदगी में परेशान हैं, परेशानी पैसों की हो, परेशानी सेहत की हो, आप शादी ब्याह के बारे में परेशान हो, बार बार तलाश करने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही हो, कारोबार में तरक्की चाहते हो, या फिर बैरूनी मुल्क जाना चाहते हो, या फिर कोई भी मुश्किलात हो, इसके लिए हमसे राब्ता कायम करें। रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स, रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स।